House owner? In English or Hindi? Well, of course. So in English only. Okay, fine. He is butter bread government. What? Oh, in Hindi. Yeah. Hindi means makhala saka. What a family. Ma'am, may I just inform that your scooter has been stolen. Oh my God, what did happen? Our lovely scooter without brake has stolen. Yes. How would I tell him? My love. Darling, happy Valentine's Day. Oh, that's so lovely. My Valentine. Am I intelligent? Oh yes, you are. Am I handsome? Of course. Am I smart? Undoubtedly. I keep it on my lock. Then my friend was right. What about? That opposite attracts. Hey. Oh, I forget to tell you that your scooter has stolen. Oh, thank you, God. Thank you that my scooter is Excuse stolen. me, man. Your scooter has stolen. Why are you thanking to God? I am thankful that I wasn't riding my scooter. Otherwise, I too would have been stolen. Ding dong, ding dong. Yes, who is there? Yes, me. Oh, good afternoon. Please do. Come in, beta. Yes, he is. Bunty? Yes, Mama. Oh, where are you, beta? Your friend has come. Please. Beat, beat. I was on computer. Who is Sonia? You don't know Sonia, a pretty girl. I'm not interested in girls and even in their types. What do you mean by types? Let me explain you. There are 6 types of girls. Heartless girls. They remember everything forever. What mean by ram girls? They forgot about you the moment you turn her off. What mean by server girls? Like my sister, always busy when you need her. And multimedia girls? They make horrible things look beautiful. And CD-ROM girls? They are always faster and fast. And what mean by virus girls? Come here, beta. Come here. Come here. I'll tell you about that. Virus girls are also known as wives. Let me say, yeah. When you are not expecting her, she comes itself, install herself, and use all of your resources. When you try to uninstall her, you will lose something. If you don't try to uninstall her, you will lose everything. Chintu, you lot of talk, beta. And it is a family tradition. What do you mean by a family tradition? My grandfather was a street hawker and my father was a teacher. And your mother? She is a woman. Oh. Okay, Bunty. Okay, Bunty, if you not want to go to Sonia birthday, it's your choice. See you tomorrow. Bye. Mama, Yes? what is in today's supper? Please make it. Okay, fine. Oh, but we don't have a big pot. Okay, let's okay. Please let me ask to Mrs. Sharma. Hello. Hello, Mrs. Sharma. It's Mrs. Kapadia. I need a favor from you. Yes. I need a big pot. You have no big pot? But you have, I saw there at your home. Okay, okay. Bunty, Yes, Mama? please go and get it from Mrs. Sharma. हमारे छात्राओं ने इतनी अच्छी से तैयारी की थी इस किट की, आप सबको मुझे आशा है भरपूर आनंद आया होगा। मेरे पास कुछ एक छोटा सा मन का लेके आया हूँ मैं आप सब लोगों के लिए। हमारे भारतीय सिनेमा के अंदर और कंप्यूटर के कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनकी आपस में तुलना की जाए तो एकदम परफेक्ट और एकदम फिट बैठते हैं वहाँ पर। वो पहला है बिल गेट्स। सभी इस नाम से बिल गेट्स, सभी इस नाम को जानते हैं। और इसके ऑपोजिट अगर कोई चीज़ है भारतीय सिनेमा के अंदर तो हमसे बढ़कर कौन। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल, आखिरी रास्ता। डॉस एंड विंडो, 2 रास्ते। भारतीय फिल्मों के नाम उसके साथ जोड़ रहा हूँ। इंटरनेट, दूर गगन की छाँव में। सिस्टम विदाउट रैम, कोरा कागज़।
A project having two project leaders, एक फूल दो माली. An employee who signs and bonds, बंधन. Backup, जागते रहो. Server, Godfather. Super password, गुप्त. A system infected by virus, प्यार तो होना ही था. Thank you very much. अब मैं आप लोगों के सामने इस ZCA संस्था के, लाल मोटेक संस्था के हमारे, मैं अपने हृदय से कहूँ तो अपने गुरु के रूप में मैंने इन्हें पाया है. 7 साल बार पढ़ने के बाद जब मैं इस ZCA संस्थान में आया था तो मुझे इनके शब्दों ने कुछ इस तरह से अपने बस में किया था कि मैं किसी और के बारे में सोचने के बारे में सोच भी नहीं सकता था. और आज यहाँ पर आके मैं जब आपके सामने खड़ा हूँ, इन्हीं के द्वारा चलाई हुई संस्था के अंदर कोर्स करके आज मैं डिग्री कोर्स कर रहा हूँ. और मैं अपने परम श्रद्धेय, परम आदरणीय श्री नितिन सर जी को बुलाना चाहूँगा. वो हमें आशीर्वाद के रूप में अपने चरण पुष्प हम प्रदान करें. धन्यवाद. सर्वप्रथम मैं यहाँ सभी उपस्थित महानुभावों का स्वागत करता हूँ. जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो आप लोगों ने देखा कि मुझे नर्वसनेस फील हो रही थी कि ये प्रोग्राम कैसा होगा. सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि दरबार हॉल बुक तो करवा लिया लेकिन भरेगा कौन इसको. लेकिन जितने भी यहाँ पे लोग आए, खासकर हमारे आदरणीय गुप्ता सर जी, अलग अलग स्कूल से आए हुए प्रिंसिपल्स, हमारे एकेडमी को हमेशा अपने आशीर्वाद से नवाजते हुए हमारे गेस्ट, और तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूं मैं हमारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का, जो इस उपलक्ष्य पे हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हमारी इस सभा में उपस्थित हुए हैं. और खास धन्यवाद मैं करना चाहूंगा उन सभी पेरेंट्स का जो इस बार स्टार्ट किए गए अवार्ड्स मेरे परदादा के नाम और दादाजी के नाम से शुरू हुआ. लाला संतराम और लाला चेतराम जी अवार्ड, जो छात्रवृत्ति अवार्ड इस वर्ष हमने शुरू किया है. और आगे आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे. इस बार हम लोगों ने चंबा शहर के स्कूल जो अपनी एक अलग प्रतिष्ठा रखते हैं, उनके जो पास आउट स्टूडेंट्स थे 10th में, जिन्होंने टॉप किया था, उन सभी बच्चों को हमने उन महानुभावों के अवार्ड से सम्मानित किया है. ये एक तरह से उन बच्चों के लिए सम्मान की बात है, और दूसरे जो फर्स्ट नहीं आए हैं उनके लिए इंस्पिरेशन का काम कर सकती है. ऐसी सोच ZCA ने और उसके मेंबर्स ने दिखाई. अब मैं आपके सामने एक धारणा, जिसे हो सकता है मैंने अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि कुछ ZCA नया करता है. तो इस बार कुछ नया आपके सामने हम लेके आए हैं, जो हमारे डियर स्टूडेंट जो हमारे बीच में हैं, उनकी मदद से ये पॉसिबल हो सका कि हमारी
चंबा की पहली एकेडमिक साइट plahainfotech.com आज गुप्ता सर जी के हाथों लॉन्च करवाए गए, जिसमें हर एक बच्चे को अपनी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन साइट पे मिलती रहेगी। ये मेरे हिसाब से पूरे चंबा में सबसे पहली बार ये एकेडमी साइट्स plahainfotech.com जो अब ऑनलाइन होने जा रही है, आज से श्री गुप्ता जी के हाथ से। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे जिस शख्स ने इसे डेवलप करने में, उसकी टीम ने हमारे प्लाहा इन्फोटेक एकेडमी को सहयोग दिया, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ और उनका थैंक्स करना चाहता हूँ आप सभी के सामने कि इतनी सुंदर और सक्षम वेबसाइट, सिक्योर्ड वेबसाइट हमें बना के, इसमें उनकी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उन्हें मंच पे आने की गुजारिश कर सकता हूं। है तो मेरे स्टूडेंट, लेकिन मैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है जो आप सराहनीय, आपके सामने भी होगा। मिस्टर पारस विच ये चंबा से ही हैं और अभी एपीपी डेवलपमेंट के नाम से इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है। प्लीज वेलकम मिस्टर पारस विच। First of all, I would like to thank Mr. Plaza for giving me and my team opportunity to develop this website. Secondly, I would like to thank my team who worked really hard on this website. And it is my own desire that I should get the most of my projects from Chamba only, so that I can make best of it. And I will assure you the total security, total database, and we will be working on with Mr. Plaza from now onwards. And he is the member of app.now. So I wish that I get the projects from Chamba. So the website will be like, the students will get all the information about the database from this website, about their fees, about their courses. मैं गुप्ता सर जी को प्लीज आमंत्रित करूंगा स्टेज पे, वो अपने शुभ हाथों से इसे लॉन्च करें। और इस तरह से हमारी प्लाहा इन्फोटेक्स वेबसाइट का हमारे सर के हाथों इसका अभी ये सामने, आपके सामने plahainfotech.com आपके इंटरनेट पे उपलब्ध है। आप मैं गुप्ता सर से चाहूंगा कि वो दो शब्द हमारे आशीर्वाद के लिए कहें। थैंक यू। MD ZCA श्री महेंद्र पला जी, मठ के प्रिंसिपल श्री KL गुप्ता जी, श्री हाकम जी, श्री भारद्वाज जी, distinguished guests, faculty members, and dear students. First of all, I would like to extend my heartiest thanks
to ZCA have given me an opportunity to be present amongst you. I think it would be better that I shall be speaking both in English and Hindi, so that whatever message I want to give you, everybody can follow. There are two schools of thought. One is of the opinion that education is for life, and there is another school of thought is of the opinion that education is for living. But in my opinion, ZCA is both for life and living. And it is the need of the hour. समय की पुकार ऐसी है कि ना केवल हमें संस्कारवादी ही एजुकेशन चाहिए, परंतु हमें ऐसी एजुकेशन भी चाहिए जो कि हमें जीविका प्रदान करे। तो ZCA ये दोनों काम कर रहा है। मैं अपनी ओर से ZCA को कि एक भी ऐसा गाना, एक भी ऐसा नृत्य नहीं देखा जिसमें अश्लीलता हो। और जो प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया, उनका जो मेजर जो फोकस था, दैट वाज ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। जितनी भी हमारी सामाजिक बुराइयां हैं उनको हाईलाइट किया गया, चाहे वो स्किट के थ्रू हो, चाहे वो गाने के थ्रू हो, चाहे वो नृत्य के द्वारा हो। तो जितनी भी हमारी समाज में जो बुराइयां हैं उन सब के ऊपर जो है इन बच्चों ने प्रकाश डाला है। और जब इस प्रकार का कार्यक्रम हम करते हैं तो हमारा ये एक उद्देश्य होता है, खास करके जो टीचिंग कम्युनिटी में लोग जुड़े हैं, कि वो अच्छा से अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। कई दिनों के बाद एक फंक्शन मैंने गर्ल्स स्कूल का देखा था, जब इन्होंने 100 सालगिरह मनाई थी, स्कूल के 100 साल पूरे हुए थे। और दूसरा आज देख रहा हूँ मैं कि बहुत ही काबिल तारीफ प्रोग्राम जो है इन्होंने किया है। आज से 15 साल पहले जब मेरे पास कॉलेज में ही प्रोस्पेक्टस का चार्ज था, मैं प्रिंट करवाता था, बनाता था, तो उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी, श्रेष्ठ बनो और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाओ। और मुझे खुशी भी है कि वो लाइन जो है कॉलेज के टाइटल पेज के ऊपर, प्रोस्पेक्टस के ऊपर आज तक भी चल रही है। हमारा जो अध्यापक हैं उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे जो स्वभाव है वो एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। इसी के ऊपर एक छोटी सी कथा मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक बुढ़िया जो है अपने पोते को लेकर के स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जाती है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं उस बुढ़िया को कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, मैं आपका क्या कर सकता हूँ, क्या भलाई कर सकता हूँ, किस उद्देश्य से आप मेरे पास आए हैं। तो बुढ़िया बोलती है, स्वामी जी ये मेरा पोता है, ये बहुत मीठा खाता है और डॉक्टर ने इसको सलाह दी है कि इसका मीठा जो है तुरंत बंद किया जाए, नहीं तो इसको घातक बीमारी हो सकती है। स्वामी जी ये पोता मेरा जो है आपका बड़ा भक्त है, आप में विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है और आपने जो कुछ भी लिखा है उनके ऊपर अमल करता है, तो कृपया इसको ये कहिए कि वो मीठा ना खाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बोलते हैं कि
आप इसको 1 महीने के बाद मेरे पास लाना। बुढ़िया चली जाती है, 1 महीना गुजरता है। 1 महीने के बाद फिर वो बुढ़िया अपने पोते को लेकर के स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास आती है और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो हैं उस लड़के को बड़े प्यार से बुलाते हैं, अपने पास बिठाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और उसे कहते हैं कि जो स्वास्थ्य है ये अच्छा होगा तो तुम अच्छे इंसान बनोगे, अगर स्वास्थ्य ही खराब होगा तो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं, इसलिए आप मीठा खाना छोड़ दो और ये प्रतिज्ञा करो कि आज से मैं मीठा नहीं खाऊंगा। तो वो बच्चा जो है स्वामी को वचन देता है कि मैं आज से मीठा खाना जो है वो छोड़ देता है। बुढ़िया बड़ी हैरान होती है कि 1 महीना जब मैं पहले आई थी तब स्वामी ने ऐसा क्यों नहीं कहा। तो वो स्वामी से प्रश्न करती है कि हे स्वामी जी, मैं क्या आपसे एक गुस्ताखी कर सकती हूँ, प्रश्न पूछ सकती हूँ। स्वामी ने कहा हाँ कर सकते हैं। तो बुढ़िया बोलती है कि आप जब मैं 1 महीना पहले आई थी तो तब आपने इसको क्यों नहीं कहा कि आप मीठा खाना छोड़ दो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि मैं भी बहुत मीठा खाता था